Now it's time for Shri Nageshwar Rao ji to give his presentation about the problems in our constitution. He will educate us on this, and I welcome him on stage to come and talk about it. Namaste all of you, respected Chief Guest Kalia sir, Tripathi sir, Upadhyay sir, Pushkal ji and Professor Mishra ji and all esteemed audience and guests here. And I thank all of you for coming here for this small program. It's a small effort that we wanted to make. And where do I start? That's a big problem and big question also. Because Hindu society is full of problems. You do not know where to start, like the big banyan tree. Somebody must have planted the sapling. After 1,000 years or 500 years, it has so many trunks. You don't know where exactly the original trunk is. It's very, very difficult. In the same way, the problems of the modern Hindu society are so diverse, so deep, so extensive, so intensive. You do not know where to start. Today morning, Dr. Hiralal ji, IAS officer, had come on my invitation. Is he here? I think he has left. No, he was here. He had. Is it? So he asked me, when I said, sir, your title of the presentation itself is confusing to me. He asked me, who is Hindu? That's a big question. Who is a Hindu? Who is a Hindu? Now, so that means after so many years of existence, we don't know who we are or what is our identity, and that is the level to which we have reached, that we do not know who we are, what is Hinduism. And he also said about certain other issues which is very pertinent. I mean, with good concern only he said, it's not that he was trying to say in any bad manner, but then those are the issues. So therefore, since 1996, my journey of these equal rights for Hindus started around 1996. And one of the persons to whom I owe my intellectual guidance, whom I can say with proudly that Guru, was Mr. Sitaram Goel. Sitaram Goel ji was the one who started what is called Voice of India movement. He gave intellectual muscle, intellectual insight as to how to address our problems or how to first analyze and understand our problems. It is that kind of intellectual insight that has made me to think why there are so many problems in Hindu society. So it took me to the basic book of Indian politics, that is the Constitution of India. I kept on reading because as a police officer, you also read law, constitution and such and other things. I read it several times, as most advocates and law enforcement officers do. But suddenly it struck me, particularly Article 25, the word propagate. Then I looked up other constitutions also, the Greek and UK of course doesn't have a written constitution, US and such and other constitutions. I did not find this word or a word which is similar to, in meaning to word propagate. Then I said, why did we have it? Then I went back to the Constituent Assembly proceedings. A few of the Constituent Assembly members, I said only few,
I'm again repeating, very few or great men. They spoke about things, they foresaw things, what was going to happen with certain of the provisions that were being inserted into the constitution. So then, gradually, I evolved myself. Then we came to the certain inferences based on empirical evidence that the problem lies with certain provisions of the Constitution of India. And it is these provisions which relegate Hinduism, Hindu society and Hindus to the second class citizens, a kind of dhimmis in the independent India. It is this externally imposed disabilities and debilities that have been compounding the internal problems. Like a person does not have the body resistance and he is exposed to so many other things, so he get infected. So the internal lack of resistance contributed to more and more infection to the body. Similar thing has been happening to the Hindu society, and this is the short background. Now we'll get into the specific provisions of the constitution and how to understand this. So the Equal Rights for India, this title itself sounds very, I don't say crazy, but certainly weird. Hindus constitute majority in India. What nonsense are you talking that Hindus do not have equal rights? But then that is the nonsense that I am going to expose and analyze and tell you. ये राजू जी ये 1948 में equal, that is United Nations Declaration of Human Rights happened, and I wish and I hope that many of you get into that, have a look at that United Nations Declaration of Human Rights. It says that all humans are born equal, both individually and collectively, and they have rights. And Indian Constitution was made in 1950. So that means our Constitution should have reflected certain of the provisions of the United Nations Declaration on Human Rights. Now, in a secular polity, in the sense that where a country or polity is not religion based, every religion, irrespective whether it is minority or majority, must have certain basic fundamental rights and freedoms which are justiciable, namely political rights, equal political rights, equal religious, equal rights over public resources and public funds, and lastly, equal educational rights. Then only we can say that that is a truly secular polity. Now, what we are going to do is that whether Indian Constitution gives these equal rights to Hindus. I'm giving you the answer in advance so that we can say, we can proceed further, that it does not. That's why it's no. Secular Constitution of India does not give Hindus equal rights, equal religious, equal educational and equal rights over the public resources. But then the question is, as we discussed immediately after the partition of India, Hindus were almost 85%, and the Constituent Assembly also reflected the same number of people, Hindus, in the Constituent Assembly. But how did it happen? This constitution was not made by Muslims for you. It was not made by Christians for you. But it was made by Hindus themselves. How is it that Hindus say that no, they do not have the equal rights? Are you crazy? So, little background. ये 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया था, आई थिंक सर स्टैफोर्ड क्रिप्स वो आके आया था. हिज मेन पर्पस वाज टू बिफोर इंडिपेंडेंस भारत को एक संविधान देना है. वो संविधान के आधार पर तो यूनाइटेड इंडिया, अखंड भारत चलेगा.
उस समय ये बहुत लोग बोले थे, उसको मांगे थे भी, इलेक्शन कंडक्ट करना चाहिए, बिकॉज जितना जो अडल्ट हिंदूस है, अडल्ट इंडियंस, सब लोग वो चुनाव में भाग लेना है और अपना अपना जो संविधान का जो समिति और असेंबली का उसका जो सदस्यों को इलेक्ट करना है। पर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने ही रिजेक्टेड दैट सजेशन, दैट ऐसा नहीं हो सकता है, अभी हम इलेक्शन नहीं करेंगे। इससे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार सो विभिन्न प्रदेशों में वो इलेक्शन किया था, वो राज्य सरकार बने थे। उस समय का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में वो अडल्ट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, दैट मीन सभी भारतीयों को जो वोटिंग राइट्स नहीं था, उसके लिए बहुत रेस्ट्रिक्शन था। ओनली अराउंड 15% ऑफ द पॉपुलेशन हैड दीज राइट्स। सो वहाँ तो सरकार बनी, देन वो बोला है वो जो प्रोविंशियल असेंबलीज थे, उस प्रोविंशियल असेंबली अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन का अनुसार वो इलेक्ट करेंगे, करके वो कंस्टिट्यूंट असेंबली भेज देंगे। फिर जो राजवाड़ा जो होते थे अराउंड 526 प्रिंसली स्टेट्स, उसमें से अपना जो पॉपुलेशन का अनुसार 1, 2, 3, 4 उस अनुसार में अपना रिप्रेजेंटेटिव और राजा लोग भेज देंगे, राजा नवाब लोग भेजेंगे। अकॉर्डिंगली 229 members were elected from the provincial assemblies and 70 were nominated by the princely states. This figure is about the post partition of India, India के बाद में. So actually the nomination पहले हुआ था जब भारत का जो पार्टीशन हुआ, उसका बाद में इतना बचा है. That means 299 members were there in the Constituent Assembly. वो जो लोगो है अब उधर, ये है, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो लोगो है. वो पार्टीशन का विभाजन पहले ये हुआ था, दैट इज व्हाई यू सी पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड ऑल दिस, एंड दे चोज एलिफेंट. मे बी आई डोंट नो द एक्चुअली हाउ इट हैपेंड, बट दिस इज द लोगो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. उसमें इंटरेस्टिंगली there was one gentleman called Damodar Swarup Seth. He was a socialist member. He never claimed himself to be Hindu. He raised very pertinent point. ये बोला है that इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसमें हम जो भारत को संविधान देने के लिए हम बैठे हैं, ये भारत को रिप्रेजेंट नहीं करते, भारतीय सभी भारतीयों को रिप्रेजेंट नहीं करते. क्यों? उसका अनुसार हाँ, ये जो 15% है, these मेंबर जितना जो वहां बैठे हैं, they represent only 15% of Indians at that time. केवल 15%. दैट मीन्स 85% लोग, उसका जो कुछ जानकारी भी नहीं था, ऐसा भारत के लिए एक संविधान बनाने जा रहा है. एंड दैट टू दे वर इलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन. सो ही सेड, ही मूव्ड ए मोशन saying that I move the motion to dissolve this constituent assembly and go for election for electing members to the Constituent Assembly through the universal adult franchise. That means भारत में जितना भारतीय अडल्ट लोग एट द टाइम 21 ईयर्स का जो अधिक जो एज है, वो सब लोग उसमें जो प्रक्रिया में भाग लेंगे और अपने अपने सदस्य को चुनेंगे. वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भारत का संविधान बनाएगा. एंड एज यूजुअल इट वाज that motion was rejected by everybody because all of them were actually, they were not representing. If elections were conducted, at least 80% of the members who are there in the Constituent Assembly will not get elected, would not have got elected. So therefore all of them together they rejected. I request all of you
जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली प्रोसीडिंग विच आर अवेलेबल इन दी पार्लियामेंट का वेबसाइट भी है और constitutionofindia.net उसमें जाके पढ़िए. हिज स्पीच ब्रिलियंट आई टेल यू. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू रीड. देन आपको पता लगेगा. उसके बाद में दैट इज द रीजन वाई ये सब लोग बोलते हैं ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो प्रियम्बल बोलते हैं. विच पीपल ऑफ इंडिया? 15% ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया वहां लिखना है. We, 15% of the people indirectly elected by the provincial assembly, hereby give this constitution to 85% of Indians. वैसा लिखना है जो preamble. But then, so everyone. So this is the background. Now second, another interesting thing, because हम तो, it is important also to demolish falsehood and truth. Sorry, falsehood and untruth, so that no we arrive at truth. जो हमारा जो अंधकार है, अंधकार को निकालने से आलोक मिलेगा, आलोक मिलने से हमको ज्ञान मिलता है. नाउ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो भी हो, जितना जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में देयर वर इंपॉर्टेंट कमिटीज. द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज नॉट द ड्राफ्टिंग कमिटी, because the constitution was not drafted by Ambedkar as per his own words. मैं नहीं बोल रहा हूं, ये अंबेडकर जी का ही शब्द है. 1953 में सितंबर 21 में राज्यसभा में वो स्वयं बोला है, मैंने ये संविधान को नहीं लिखा. ये आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू बर्न दिस कॉन्स्टिट्यूशन. ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये राज्यसभा प्रोसीडिंग्स में है, आप वो भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा. इसका जो एडवाइजरी कमिटी जो बनाया, फंडामेंटल राइट्स, ट्राइबल राइट्स, एक्सक्लूडेड एरियाज राइट्स एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज राइट्स, इसका जो ये समिति का, ये कमेटी का अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने. उसने वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बोल रहा हूं, उसने एक बनाया अपना जो रिकमेंडेशन, वो रिकमेंडेशन ये दिया है संविधान में जो असेंबली का, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का. उसमें लॉट ऑफ पीपल ऑब्जेक्टेड, इवन अमॉन्ग्स दीज द इनडायरेक्टली इलेक्टेड पीपल. दे सेड ये बहुत गड़बड़ है, आप ऐसा नहीं दे सकते हैं. बट सरदार पटेल ने और वो रिकमेंडेशन वापस भी कर दिया था फॉर रिकंसिडरेशन. सरदार पटेल नॉट ओनली reiterated the recommendation, he used his might, because at that time in 1949-48, उस समय there were, before Gandhi died, there were three most important people in politics of India. One is Mahatma Gandhi, other is Jawaharlal Nehru and Sardar Vallabhbhai Patel. ये तीनों जो चाहते थे वो होते थे. And imagine the might of Sardar Patel standing in the Constituent Assembly and say that इसको पास करना है. And it was passed. As a result, we have got articles 12 to 30. These are the part 3 of the fundamental rights. हमारा जो हिंदुओं को जो इफेक्ट होता है, आर्टिकल्स 25 to 30. These articles which deny equal rights to Hindus are the contribution of Sardar Vallabhbhai Patel, for whom we have constructed the world's tallest statue. Hindus have this lemming complex. There is in psychology there is a word called lemming complex, which means suicidal tendency people develop. Hindus collectively have this lemming complex of worshipping their tormentors. It's not today. It has been happening, but today in the modern society it has become much more pronounced. We do not know who is our benefactor, but we worship our tormentors on falsehood and falsehood. So that's how we are doing it. And lot of people spread that no, सरदार पटेल अगर प्रधानमंत्री होते तो भारत का जो पूरा उसका चेहरा बदल जाता है. ये है उसका चेहरा.
Nehru and Patel, Gandhi, they come from the same mold. They have no difference at all. I have written an article also because वो जो इसका जो ये दिया है सरदार पटेल and Hindu Dhimmitude. This was published in Pragyata. Kindly read it. And also here I have written another article which is published in Swarajya magazine about the constitutional subjugation of Hinduism. Now, this is what, thanks to the Iron Man of India, we have been second-class citizens in the so-called independent India. Now, we have discussed about the three issues, that is equal religious rights, equal educational rights and equal rights over public resources. Now we'll analyze, do Hindus have equal religious rights? This is Article 25, Clause 1. There are three important words in this. One is right to freely profess, practice and propagate religion. So let us examine whether in all these three aspects of right to profess, practice and propagate, whether Hindus have equal rights or not. Now here is the situation. Do Hindus have equal right to profess Hinduism throughout India? Now you see, wherever Hindus have become minorities, whether it is a village, mohalla or town or जिला और राज्य, जहाँ हिंदूज माइनॉरिटी होता है वहाँ हिंदुओं का जो मूल अधिकार जो संविधान में जो दिया उसका जो पालन करने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए उसका अधिकार क्षीण हो जाता रहता है। अब जाकिए कश्मीर जिनोसाइड क्यों हुआ? कश्मीर में जो 1947 में 21 और 22% हिंदूज थे, आज एक भी हिंदू नहीं है, एक भी नहीं है, 1% का बात नहीं। क्यों हुआ? अगर ये राइट टू, उसका जो नरसंहार क्यों हुआ? अगर जो संविधान है, संविधान का जो संवैधानिक व्यवस्था जो दी है, तो ये क्यों प्रोटेक्शन नहीं हो पाया? वैसा ही जब 1950 में ये जो संविधान जो आया था, उस समय नागालैंड में क्रिश्चियन 10-15% होता था उस समय, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, उसमें अभी तो 100% है। मेघालय में 95 क्रिश्चियन है, 5% 4% हिंदू होगा। मिजोरम में तो कोई नहीं है, नागालैंड में कोई नहीं है, लक्षद्वीप में 0 है। वैसे ही hundreds of villages, not hundreds, thousands of villages, Hindus are either 0 or minority. So many districts, tens of districts. There are around 200 districts in this country where Hindus are in minority. This happened only in the last 73 years of the constitution. And states तो आपने जो लिस्ट दिया है, जब हिंदुओं को जो अपने जो धर्म को जो प्रोफेस करने के लिए जो मूल अधिकार दिया गया बोलते हैं, अगर उस संविधान उस मूल अधिकार को जो रक्षा नहीं करते, हिंदुओं का जो मूल अधिकार को, उसका मतलब क्या है? कुछ है क्या? ए राइट दैट इज रिटन, दैट इज नॉट एनफोर्स्ड, इज एज गुड एज नॉट एग्जिस्टिंग। इज एज सिंपल। जस्ट बिकॉज एक ग्रंथ में या पुस्तक में अगर लिखा है, उसका जो अमल नहीं होता है, उसका मतलब ही नहीं है। Then do Hindus have equal rights to practice their religion? अपना जो धर्म को आचरण करने के लिए उसका ये है क्या? कर्नाटक और महाराष्ट्र, ये दो स्टेट है जो एंटी सुपरस्टिशन लॉज बोल के बनाया। वो सुपरस्टिशन डिफाइन करता है जो अपने अपने मन से। बट इफ यू गो टू द रूट ऑफ दिस वन, व्हाट इज रैशनल एंड व्हाट इज सुपरस्टिशियस? I asked him one question in a Telugu debate on TV. जो
इसको जो रेशनलिज्म को तेलुगु में बोलते हैं हेतुवाद, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता, सेम सेम ओके। हमने बोला है, हमने पूछा है अंतिम हेतु कौन है, इस संसार का, इस विश्व का अंतिम हेतु कौन है। आपका जो हेतुवाद बोल रहा है उसका कोई उत्तर नहीं है। सो द लाइन between what is superstition and what is rationality, what is a belief, because belief cannot be scientific. Suppose if I love my son and I do not love neighbor's son, can you explain? No, you cannot explain. Just because it is born to you, how can you say that? He is also human being, he is also human being. But there is something emotional involved. Similarly, I love my country more than other countries. So these are the things which are beyond explanation. So religion by definition is belief. Any religion. Some are, though you can bring in some kind of a rationality or a kind of a thought process, but if you go to the core, any religion is belief. Now when you say that superstition means blind belief, what is blind belief? Because no, it is like शुद्ध शाकाहार जो लिखते हैं ना, अरे शाकाहार तो शाकाहार है, शुद्ध शाकाहार क्या है? So वैसे ही blind belief क्या है? Belief itself is blind because it is beyond reason. And superstition का नाम पे जो दो राज्य है, कर्नाटका जो लाके, जितना जो हिंदू प्रैक्टिसेस है, the political dispensation जिस प्रैक्टिस को जो does not like, वैसे जो कलेक्टर और एसपी और पुलिस ऑफिसर, जो थानेदार और तहसीलदार, जिसको जो अच्छा नहीं है वो तुरंत ये एक्ट को लगा देते हैं, केस डाल के हिंदुओं को बाहर जो अंदर डाल देते हैं। परंतु हजार हजार लोगों को जो बुला के स्वास्थ्य सभा, वो जो हीलिंग मिशंस बोल के जो क्रिश्चियन जो करते हैं, वहां सबको जो नचाते हैं, उसको जीसस आ रहा है, आपको जो स्वास्थ्य करेगा, आपको ये करेगा, वो सुपरस्टिशन नहीं है। Why this selective application of laws? वह ऐसा है, आप जो दरगाह में जाते हो वो सुपरस्टिशन है, but nobody says anything. Even cutting, suppose ये एनिमल आप जो काट रहा है उसका हलाल कर रहा है, that is also superstition. Are you applying that law? It's a selective application of law only against Hindus. Likewise, अब शनि मंदिर जो महाराष्ट्र में है, जल्लीकट्टू जो तमिलनाडु में है, उसको जल्लीकट्टू इज नॉट ड्यूरिंग पोंगल डेज, दैट इज मकर संक्रांति टाइम में, जो अपने जो क्या बोलते हैं, जो बुल, उसके साथ में जो लड़ाई करते हैं, इट इज ए फ्रेंडली फाइट, इट इज नॉट इंटेंडेड टू kill even. So you fight with it, and then it's like two brothers fighting or two relatives or two people fighting, kushti jo karte hai jo, it is something like that, and Supreme Court has banned it. Then वैसा ही जो दिवाली में जो आते हैं, जो आप पटाखा मड़ाई चलाना है, अरे दिवाली का तो मुख्य ये है, हम अभी जो पूर्व पक्ष अभी चल रहा है, आज तो लास्ट है, हम वो पूर्वज को बुलाया यहाँ और फिर 1 महीना यहाँ रख के उसको तो हम आतिथ्य देंगे, उसके बाद में उसको हम फिर वो उसका अपना जो लोग को भेज देंगे। तो जाने के लिए हम एक आलोक रास्ता दिखा रहे भाई, जो बस्टिंग लाइट्स, दिस हैज बीन देयर फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, ओनली टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड, बट अदरवाइज वी विल डू दैट। आज तो आई थिंक जो गया में देव दीपावली जो चलता है, आई थिंक देव दीपावली आज और कल में है, उसके बाद में जो दीपावली दिन एक महीना हम रख के हम भेज, इसके लिए वो इतना जो प्रदूषण हो रहा है, आप जितना गाड़ी चला रहे हो क्या प्रदूषण नहीं है, जितना फैक्ट्री चला रहे हो प्रदूषण नहीं है, आप जितना जो प्लास्टिक इधर उधर फेंक रहा है, जो मैंने लैक्स एंड लैक्स ऑफ टन्स ऑफ प्लास्टिक वी आर, ये प्रदूषण है। खाली एक दिन हम जो पटाखा चलाए तो पूरा प्रदूषण है, ये सेलेक्टिव एप्लीकेशन है। और सेम प्रदूषण जो दिसंबर 25 में अगर होगा तो नहीं है, और 31 दिसंबर जो नया साल आता है उसका नहीं है, केवल
दीपावली दिन में जो होता है, वैसा ही वाटरलेस होली, व्हाट नॉनसेंस। अगर होली तो अगर बिना पानी से, बिना रंग से होली कैसा मना जाता है? सो लाइक दिस our cultural practices, religious practices are singularly targeted to deny us the right to profess and to celebrate them. ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है? आप बोलते हैं हमको, आपको तो ये जो प्रैक्टिस करने के लिए है, बट वही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तो बंद कर देते हैं। वो कानून बना के भी जो राज्य सरकारों बंद करते हैं। देन जो त्रिपुरा राज्य है, उसका त्रिपुरेश्वरी मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, बहुत प्राशस्त्य है, उसका तो महिमा है बोलते हैं। उसका साल में एक बार उसका पशु बलि होता है। वो दैट एरिया इज शक्तिम जो बहुत है, वहां तो हाईकोर्ट उसको बैन कर दिया। परंतु प्रतिदिन लाखों जानवर को, पशुओं को हम मार के खाते हैं, उसके लिए कोई ये बैन नहीं है। भारत में जो आर्टिकल जो 48 जो लिखा है, जिसमें जो काउ स्लॉटर शुड बी बैंड अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट अभी भारत में विश्व में जो गोमांस एक्सपोर्ट करने में नंबर 2 है। आप वेबसाइट देखिए, एपेडा वेबसाइट apeda.gov.in, उसका अनुसार every year we are slaughtering 4 crore animals, cattle, 4 करोड़। that means प्रतिदिन मिनिमम 1 लाख पशुओं को हम मार रहा है, केवल एक्सपोर्ट करने के लिए, हम खाने के लिए भी नहीं है ये, बाहर के लिए, बाहर लोगों को जो खाना दिलाने के लिए हम अपना ही जो पशु संपदा को इसको मार रहे हैं। भारतीय जो हैंदव सभ्यता में हजारों सालों में इतना इस लेवल ऑफ हिंसा, वायलेंस ऑन एनिमल्स, इट हैज नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ इन द एंटायर इन द हिंदू सिविलाइजेशन। हम खाते थे, बट अपने के लिए हम जितना खाते हैं उतना ही, जो एक दो करके खाते हैं, बट लाखों केवल जो बाहर लोगों को फीड करने के लिए। ये कौन सा संविधान है? ये कौन सा जो फंडामेंटल राइट्स है? अगर हम एक दो अगर शक्ति का सामने अगर वो पशु बलि करे तो नो, दिस इज सुपरस्टिशन, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स। वेराज ईद में कितना लाखों जो ये बकरा और इसको मारते हैं, वो पशु बलि नहीं है, दैट इज ऑल्सो पशु बलि। व्हाई आर यू नॉट बैनिंग दैट? देन अब तो जो पहले जो अघोरा तो होते थे, व्हेन आई वाज चाइल्ड आई यूज्ड टू सी लॉट ऑफ अघोरास एंड आनंद मार्गीस, तो इसे तो वो पूरा खत्म कर दिया। तंत्र विद्या इतना अच्छा था। इनफैक्ट द वर्ड तंत्र विद्या, वो जो एक चंद्रनाथ बसु बोल के एक पुस्तक लिखा था बंगाली में, उसका है जो हिंदुओं, ही इज द वन फर्स्ट हु कॉइन्ड द वर्ड हिंदुत्व, द ट्रू हिस्ट्री ऑफ हिंदूज। इन 1800, वो एग्जैक्ट ये नहीं है, मच बिफोर सावरकर यूज दैट वर्ड, उसमें वो लिखा है अगर तंत्र को हम फिर वापस लाएं, ये हमारा हिंदू समाज का जो दुर्दशा है, वो दुर्दशा को आप निकाल सकते हैं। और उसी तंत्र विद्या को हमने जो बैन किया है थ्रू सुपरस्टिशन, ये वो करके। Then Supreme Court courts exercise ecclesiastical jurisdiction. Ecclesiastical means dharmic jurisdiction. Nowhere in the Constitution it is mentioned that the Supreme Court or High Court can exercise that jurisdiction over the religious matters. Show me one provision. Yet our courts, they have assumed a non-existent jurisdiction and become the धर्माचार्यास। ठीक है, अगर कुछ धार्मिक समस्या को केस आया है, why are you not consulting हिंदू धर्माचार्यास? इसका जो हिंदू धर्म का क्या है आपका मृत्यु, are you consulting? Is the High Court or Supreme Court consulting? No, but they give
or judgment based on the Abrahamic principles. So therefore, what is happening is, in the name of reform, the governments and courts are not allowing Hindus to practice their religion and using constitution as a shield, as a charter to destroy Hinduism. The next is right to propagate. It's a very tricky thing you have to understand. There are two types of religions. One is Abrahamic religions and there is non-Abrahamic. Abrahamic religions are Judaism, Christianity and Islam. उसका मेन उद्देश्य ये है, जुडाइज्म तो इट हैज बिकम वीक, दैट इज डिफरेंट, बट राइट नाउ क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, द फंडामेंटल purpose for which those religions have come into existence, that their particular religion has to be spread throughout the world by converting or by other means of all other people. Other religions have no right to exist. So therefore, and it is also the fundamental right or the divine right given to a Christian or a Muslim to convert a non-Christian or a non-Muslim into their religion. That means they are expansionists, proselytizers, evangelizers. So these are the people, these are the nature of the religion, because I am trying to simplify it, because if you go into that, we require 2-3 days of conference. Whereas non-Abrahamic religions, like especially Sanatana Dharma, Hindu, it does not know what it means by proselytization. हम बोलते हैं हम अपना भगवान को हम पूजा करते हैं, आप अपना भगवान को पूजा करो, हमारा आपका तो कोई लड़ाई नहीं है। फिर वो लोग बोलते हैं आपने जो पूजा कर रहा है, आपने जो ये उपासना कर रहा है, ये गलत है, सो आप धर्म परिवर्तन करो, हमारा धर्म करो। इट इज लाइक the comparison is between vegetarian and non-vegetarian. Suppose in the forest there are various kinds of animals. Let's take wolf or tiger, and other side is deer. And let's say that we are giving equal rights to hunt each other. We are giving equal rights to deers and tigers or jackals to hunt each other and kill and eat. Now deer will come, जो हिरण वो बोलते हैं, हम तो जानते नहीं कैसा वो हंटिंग कैसा होता है, पता नहीं। हम हंटिंग अगर किया तो भी, किसी को मारा तो भी, हम तो खा नहीं सकते। Whereas for the non-vegetarian animals, that is carnivores, like tiger or jackals or wolves, this right becomes a license to kill deer. बिकॉज वो बोलते हैं आपने तो दिया है हमको इक्वल राइट उसको मार के खाने के लिए। अगर जो हिरण जो हमको नहीं मार पा रहे, मेरा थोड़ी गलती है। सो ये है वो जो इक्वालिटी, जो इक्वल राइट टू प्रोपगेट, जिसको जो प्रोपगेशन जानता नहीं है आप बोलते हैं उसको प्रोपगेट करो, और जिसका जो काम है प्रोपगेट करके धर्म परिवर्तन करना है उसको तो आप लाइसेंस दे दिया। दैट इज वाई विश्व में किसी संविधान में जो वर्ड प्रोपगेट नहीं है, भारत में ही है। और जब ऐसा हुआ, जब ये जो प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था, इवन क्रिश्चियंस हैव एक्सप्रेस सरप्राइज, अरे यार हम तो मांगे भी नहीं है, लोग तो ऐसे दे दिया। सम फादर्स हैव एक्सप्रेस दिस। That means this is such is the self-destructive tendency among Hindus. That we want to show to the whole world. विश्व गुरु तो यही है, ये विश्व और कुछ नहीं है, ये फालतू विश्व गुरु है ये सब। So that we are self-destroying. Why in 73 years so many states have become Hindu minority? 1300 साल हमारा पूर्वज ने अपना धन, मन, प्राण ये त्याग करके धर्म को बचाया। अगर आज हम हिंदू है, हमारा के वजह से नहीं है, हमारा पूर्वज वजह से हम हिंदू है। उस 1300 साल का जो त्याग है,
ये पिछले जो 73 ईयर्स में हम पूरा मैंने खत्म कर दिया है. वी हैव वेस्टेड देयर सच ग्रेट सैक्रिफाइस. Such is the effect of this word propagate. Yet Hindus do not understand where the problem is happening. And interestingly, Greek constitution bans proselytization. All Islamic countries, they ban conversions. China bans conversion. It is only the only ancient civilization, that is India, that gives license. Not only gives license, gives permission under the Foreign Contributions Regulation Act. Aaj, this year, that is last financial year, 22,000 crores is the amount of financial money received under the Foreign Contribution Regulation Act. जब 2014 में इस सरकार आया था, उस समय 12,000 था, 12,000 करोड़ पर साल, पर ईयर. पिछले 10 साल में एवरी ईयर 1,000 crores has been the increase year on year. Cumulatively 10,000 crores is the increase. That means we have not only given license, we have allowed them to bring as much resources as they can from all countries and launch religious war to convert and destroy Hinduism. Now, do Hindus have right to freely manage temples? This is another aspect of the religious right. Now, Article 26 तो बहुत अच्छा बोलते हैं, बोलने में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है. इसमें तो everyone has got the right to establish, manage and affairs of the religion. But reality क्या है, सच क्या है, वास्तव में क्या चल रहा है? And this is also Article 25 जो clause 2, उसमें तो these words आप एक बार market, social welfare and reform, only of Hindu religious institutions. It does not talk of the Christian or Islamic institutions. Okay. What is the reality? Every state, from Kashmir to Kanyakumari, from Gujarat, Somnath to Manipur, Imphal, अभी जो वहाँ जो समस्या चल रहा है, every state have either made laws or used existing laws to take over important Hindu temples. As on today, more than 2 lakh temples, Hindu temples, are under the government control, state government's control. Control in certain states it is 10 years, थोड़ा less है, but control in certain other states it is more, but nonetheless the temples are controlled. आप काशी भी देखो, विश्वनाथ जी तो सरकार का अंडर है. अब जहाँ भी जाओ, जो माता वैष्णो देवी सरकार का अंडर में है, सोमनाथ मंदिर वो तो प्रधानमंत्री स्वयं उसका जो कमेटी का प्रेसिडेंट है. और इम्फाल में जो गोविंद जी मंदिर है वो भी सरकार का अंडर में है, कश्मीर से लेके. और ये बोलते हैं फिर भी हम सेक्युलर. जब आप सेक्युलर बोलते हैं दैट मीन्स आपका धर्म का तो कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी आप मंदिर चलाते हो, IAS अफसर को लगाते हो, PCS अफसर को लगाते हो, नहीं तो तहसीलदार का हाथ में दे देते हो. भी सरकार को डायरेक्ट और इनडायरेक्टली उसका ट्रस्ट बोर्ड में अपना पार्टी वालों को चलाते हैं या अपॉइंट करते हो. सो हाउ इज दैट पॉसिबल व्हेन आर्टिकल 26 इज देयर? देन 20 लाख एकर्स, नॉर्थ में थोड़ा कम है बिकॉज यहाँ तो जितना जो जमीन है जो मंदिरों का वो सब सरकार वो इवन द एर्लियर मुस्लिम गवर्नमेंट्स आर दे हैव टेकन ओवर. बट साउथ में almost around 15 lakh acres of lands belong to the temples. South includes Orissa also, because Puri Jagannath Mandir का 65,000 acres केवल पूरी जगन्नाथ मंदिर का है. 65,000 एकड़ केवल एग्रीकल्चर लैंड हम बोल रहा है, जो 20 लाख एकड़ जो बोलते हैं, इसमें जो अर्बन प्रॉपर्टी नहीं है. सो वैसे ही
आप एवरी स्टेट में देयर आर लैक्स एंड लैक्स ऑफ एकर्स ऑफ टेम्पल लैंड। एंड आप जो मद्रास में जाइए जो लैला कॉलेज का है, लैला कॉलेज जिसमें जो अभी जो बनाया है वो हिंदू जो कपालीश्वर मंदिर का जो जमीन है। सो लाइक दिस 20 lakh acres, thousands of crores worth income केवल तिरुपति मंदिर में साल को आई थिंक 3000 crores इज द एनुअल अकाउंटेड इनकम। इसमें तो कितना लूटता है जो ऑफिसर्स वो अलग बात है। सब मिलाने से अराउंड 50,000 crores इज माई रफ एस्टिमेट। एंड अर्बन प्रॉपर्टी इज वर्थ लैक्स ऑफ क्रोर्स, बिकॉज आजकल अर्बन प्रॉपर्टी अगर एक आपका तो अगर 200 स्क्वायर मीटर जमी होगा तो कम से कम 1 करोड़ रुपया तो होगा। वैसा प्रॉपर्टी मैंने लैक्स ऑफ करोड़ सरकार ले लिया है। वेर जो चर्च का या मस्जिद का एक रुपया भी इनकम या 1 इंच भी उसका जमीन भी सरकार का अंडर में नहीं है। और इसका परिणाम क्या है? जो टेम्पल में जितना लोग हैं वो सरकारी संस्था बन गया है, वो आध्यात्मिक केंद्र नहीं है, वो पूजा स्थल नहीं है, पवित्र स्थल नहीं है। और अपना भगवान को हम देके दर्शन करने के लिए सरकार को टिकट माध्यम से उसको पैसा देना पड़ रहा है। अभी जो तिरुपति में जो अभी जो सरकार है वो 10,000 रुपीज किया टिकट, एंड मूर्ख हिंदू जो 10,000 रुपीज का भी जो परचेज करता है। अब जहां भी मंदिर जाए वो उसको देखे, नॉर्थ में भी हो रहा है, टिकट ले लो आप, ये कार्यक्रम का अर्चना करने के लिए, ये पूजा करने के लिए वो टिकट ले लो, दर्शन करने के लिए। सो ये औरंगजेब समय में भी ऐसा नहीं हुआ था। औरंगजेब जिजिया टैक्स लगाया था, परंतु आप मंदिर जाने से तो अगर आप टिकट लेके जाना है, वो औरंगजेब उस समय के, ये कौन सा जो धर्मनिरपेक्ष सरकार है? ये हिंदू विरोधी सरकार है या धर्मनिरपेक्ष सरकार है? और कमर्शियल सेंटर्स, एक टेम्पल है श्रीशैलम मल्लिकार्जुन स्वामी टेम्पल है आंध्र प्रदेश में। उसका इंटरेस्टिंग हुआ था, वो एक टेंडर किया था, उसको जो दुकान है जिसका जो अलग अलग पूजा सामग्री के लिए दुकान है, उसमें टेंडर दिया था उन्होंने। उसमें एक मुसलमान भी अप्लाई किया। वो मंदिर ट्रस्ट ने, ट्रस्ट बोलते नहीं तो सरकार ऑफिसर बोले नहीं आप तो मुस्लिम है, हम नहीं देंगे। दैट पर्सन वेंट अप टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश ये है, जब सरकार मंदिर चलाते हैं, इट बिकम्स पार्ट ऑफ द स्टेट। सर आप लोग जानते हैं, यू नो इट बेटर। इट बिकम्स स्टेट। स्टेट मीन्स आर्टिकल 12 में what is the definition of state? It says that anything which is under the control of government is state. No, temple is under the control of government. Since temple is under the control of government, it becomes a secular institution. So therefore you cannot discriminate against a Muslim in giving contracts. So therefore a Muslim has got, through the order of Supreme Court, the contract to run a shop there. Like this, so many things. So the complete secularization of our धार्मिक स्थल। इसका परिणाम क्या है? सपोज देश चलाने के लिए एक संस्था चाहिए, उसके साथ में एक संशोधन भी चाहिए। संस्था क्या है देश चलाने के लिए? सरकार तो संस्था है। देश चलाने के लिए सरकार एक संस्था होता है। पहले दिन में तो राजवाड़ा होता था। वैसा ही धर्म चलाने के लिए भी प्रति धर्म को उसका जो कुछ संस्थाएं चाहिए। हमारा संस्था क्या है? मंदिर और मठ, ये दोनों हमारा संस्था है। और क्रिश्चियनिटी में क्या है? उसका चर्च। और इस्लाम में क्या है? उसका मस्जिद। अगर ये मस्जिद मुस्लिम समाज का अंतर्गत में नहीं रहता है, सरकार कंट्रोल करते हैं, उसका तो वो इस्लाम नहीं चल सकते। वैसा ही अगर चर्च अगर जो सरकार ले लेते हैं
वो क्रिश्चियनिटी में नहीं चल पाएगा। वैसे ही जो हिंदू मंदिर जब हिंदू समाज का अंतर्गत नहीं रहता है, उसका नियंत्रण में नहीं रहता है, और उसका जो संशोधन जो आता है, जो रिसोर्सेज, जो धन जो आता है, वो समाज का अंदर में नहीं रहता है, वो हिंदू धर्म भी नहीं रहेगा। अभी क्या हुआ है, हमारा जो हिंदू समाज में जितना जो समस्या है, उस समस्या को समाधान करने के लिए हमारा पास कोई संस्था नहीं, ना कोई धन है। उदाहरण रूप से हम जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाया, अगर ये मंदिर पूरा अगर जो हिंदू समाज का अंतर्गत होता, जो कोविड समय में जो पुजारी वर्ग इतना जो कष्ट हो रहा था, उसको तो मंथली रेम्यूनरेशन दे सकते थे, और समाज में जितना जो कास्टिज्म, जो जातिवाद जो फैला रहा है, उसको तो बंद करने के लिए हम एक आंदोलन भी चला सकते थे। एक आंदोलन या उद्यम चलाने के लिए तो पैसा चाहिए, बट मंदिर का पैसा हम जो धन देते हैं जो सरकार को, जो मंदिर में, वो सरकार को जाते हैं। वेरा जो जकत जो मुसलमान देते हैं, वो पूरा अपना धर्म के लिए, धर्म प्रचार के लिए वो यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। वैसा ही जो दशम बोलते हैं, जो इसको क्रिश्चियनिटी में, उसका 10% ऑफ देयर इनकम वो प्रति मंडे में उसका जो वो पेटी में, जो दान पेटी में डालना है, उसको इंग्लिश में टेथ बोलते हैं, TETH। उसको जो इंडियनाइज्ड वर्जन इज दशम, दैट मीन्स 10% ऑफ द इनकम। उस धन से अपना जो चर्च चलाते हैं और प्रचार करते हैं और जो धर्म परिवर्तन करते हैं। परंतु हम जो धन देते हैं जो हुंडी में, वो जाता है सरकार को। ये है जो परिस्थिति आपको दिखाई दे रहा है, तो दूर से थोड़ा स्मॉल फॉन्ट है। और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस कंट्रोल, हिंदुओं का तो यस है पूरा हमारा मंदिर का, परंतु क्रिश्चियन, मुस्लिम और सिखों का वो नो है। यन मीन्स नो, दैट मीन्स हिंदू रिलीजियस बॉडीज, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, जो हिंदुओं का केवल सब सरकार का पूरे नियंत्रण में है, और उसका धन, उसका इनकम, उसका जो संपत्ति सब सरकार का हस्तक्षेप कर लिया है, उसका कब्जा में ले लिया है। और परंतु क्रिश्चियन और मुस्लिम और सिख लोगों के लिए वो नहीं किया है। ये है जो फंडामेंटल राइट्स और जो आर्टिकल 26 और 25 बोलते हैं। इट इज 1:30, इट विल टेक अनदर हाफ एन आवर। अभी करें ना भोजन के बाद करें? ओके ओके ओके, आई ट्राई टू, मैं थोड़ा संक्षिप्त में करना चाहता हूँ। डू हिंदूज हैव राइट ओवर पब्लिक रिसोर्सेज एंड पब्लिक फंड्स? पब्लिक फंड में जो सरकार का जो नीति जो होता है, इसमें आर्टिकल 27 बोलते हैं, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। आर्टिकल 70 ये बोलते हैं, जो सरकार जो कौन सी नया टैक्स जो लोगों को ऊपर नहीं डाले, जिसका उद्देश्य ये है किसी धर्म को जो प्रमोशन करने के लिए, परंतु जो इसको देखने से भी ठीक है, बट जब मैंने आस्क्ड जो सम पॉलिटिशियंस, बोलते हैं हम कहें नया टैक्स तो कोई नहीं डाल रहे, जो टैक्स लोग दे रहे हैं उसी में से बांट के जो मुस्लिम क्रिश्चियन को दे रहे हैं, बोलते हैं उसका तो अब तो एक ही बात है, अब एक पूरा नया नाम में से ले रहा है ना, एक ही नाम से लेके उसको तो बांट रहा है, उसका तो स्पिरिट तो यही है। नो ऐसा नहीं होता है। बट इसका क्या परिणाम है? केवल माइनॉरिटी मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस के लिए इतना संस्था है, और भी है, मैं तो इम्पोर्टेंट संस्था में जो डाला है, एक मिनिस्ट्री भी है। इज देयर ए मिनिस्ट्री फॉर हिंदू अफेयर्स? नो, बट देयर इज ए मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स। क्या हिंदुओं को तो अफेयर्स नहीं है क्या? उसके लिए तो कोई नहीं है। देन इज देयर ए कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर हिंदूज? देयर इज ए नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। क्यों, हिंदुओं को तो कमीशन नहीं चाहिए क्या? समस्या नहीं है क्या? देयर इज ए सेंट्रल वक्फ बोर्ड। इज देयर ए सेंट्रल टेम्पल बोर्ड? नहीं है। हज कमिटी है। देन उसके बाद में नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, केवल माइनॉरिटियों के लिए उसका जो लोन देने के लिए, उसका जो आर्थिक सहायता करने के लिए, देयर इज ए सेपरेट कॉर्पोरेशन कॉल्ड नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये है
देन वक्फ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भी है, देन मौलाना आज़ाद एजुकेशनल फाउंडेशन भी है। हिंदुओं के लिए कुछ नहीं है, केवल ऑल ऑफ देम आर ओनली फॉर माइनॉरिटीज। ये थोड़ा कुछ है, और भी है संस्था, बट आई डिड नॉट वांट टू मेक इट क्लमजी। नाउ पिछले जो 2013-14 में जब यूपीए सरकार थे केंद्र में, उसका जो बजट था, जो माइनॉरिटी अफेयर्स का बजट इतना 3131 करोड़। उसके बाद में 2014-15 में जो अभी जो सरकार आई है, उसका जो प्रोग्रेसिवली बढ़ते 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 अभी जो पिछले साल में 5020 करोड़ वो माइनॉरिटी अफेयर्स का केवल माइनॉरिटी को ने दिया है। जब हम लोग जो आउटरीच कर रहा है, जो ये ऐसा जो कौन सा सेकुलरिज्म है, कौन सा धर्मनिरपेक्षता है, आप केवल माइनॉरिटीज को दे रहे हैं, अभी एक षड्यंत्र किया है। वो माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्रित्व शाखा में नहीं दे रहा है, वो क्या किया है, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को 2000 करोड़ से अधिक उधर दे दिया और बोल दिया हम, देखो इलेक्शन आ रहे हैं, हम काट दिया उसको तो बजट। बट एक्चुअली अगर आप देखें, ये 43,382 करोड़ केवल माइनॉरिटियों को उसका जो कल्याण के लिए, उसका जो आर्थिक और सामाजिक या दूसरा प्रकार में उसका जो डेवलपमेंट के लिए वो दिया गया है। ये केवल केंद्र सरकार का है। अगर आप राज्य सरकारों का बजट सभी तो मिलाने से कम 1 लाख करोड़ पिछले 10 साल में केवल माइनॉरिटी अल्पसंख्यक वर्गों के लिए है। नाउ हिंदुओं का जो जनसंख्या का देख लीजिए, ये 79% जो बोलते हैं ये गलत है, बिकॉज नो लॉट ऑफ दिस, बट ठीक है, वो तो सेंसस ऑपरेशन में वो दिया है। इसका अनुसार 80% हिंदू है, बाकी 20% अलग दूसरा है। 20% लोगों को अगर 1 लाख करोड़ आपने दिया पिछले 10 साल में, हिंदुओं को तो 4 लाख करोड़ तो देना चाहिए। सिंपल, बिकॉज नो सरकार तो सभी को तो राजधर्म क्या है, सभी धर्मों को, सभी व्यक्तियों को, सभी जो सिटीजन्स को एक दृष्टि से देखना है, सबको सहाय करना है। अगर उसको 1 लाख करोड़ दिया है, हिंदुओं को कितना दिया है, ये बड़ा जो हिंदी में क्या बोलते हैं ठेंगा, वो है। दिस इज द थिंग। और प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह जी जब थे, उसने एक बयान दिया है, स्टेटमेंट दिया है, मुस्लिम्स हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ दिस कंट्री। दैट मीन्स मुसलमान इस देश का जो सार्वजनिक संशोधन है उसका ऊपर प्राथमिक मूल अधिकार है, उसका बाद में ही अन्य लोगों का है। दूसरा, उस सरकार ने जो सचार कमेटी एक बिठाया था, जो राजेंद्र सरकार, सचार जस्टिस राजेंद्र सचार, उसने दिया है जो एक रिपोर्ट। उस समय जो बीजेपी, आरएसएस और मोदी जी ये सब लोग बहुत खंडन किया था, जो ऐसा जो बयान देना दैट मुसलमान हैव द फर्स्ट राइट एंड देन ये सचार कमेटी को बिठाना, ये सब गलत है। हम भी जो अच्छा सोचा था, परंतु पिछले जो 10 साल में जो मनमोहन सिंह जी ने जो बोले थे, जो सचार कमेटी वो लोग जो उसको जो खंडन किया था, उसी जो सचार कमेटी का जो रिकमेंडेशंस एवं जो मनमोहन सिंह ने जी ने जो बोले थे, उसको पूरा अमल किया है, अमल कर रहा है ये पिछले 10 साल। अब उसी लिए आप देख लीजिए, उस समय जो 3000 करोड़ था, अभी तो 5000 करोड़ से हो गया एक साल में। तो पूरा माने एम्पिरिकल एविडेंस है। देन मोदी जी ने 2019 में बोला था दैट 2-3 बोला है दैट हम 5 करोड़ स्कॉलरशिप माइनॉरिटी को देंगे, माइनॉरिटी का जो छात्र को देंगे। दैट मीन्स एक साल में 1 करोड़ स्कॉलरशिप मुस्लिम और क्रिश्चियन को देंगे। नाउ ये जो स्कॉलरशिप के बारे में एक हम उदाहरण लेके जो बोलने से जो थोड़ा समझ में आएगा। सपोज एक ही मोहल्ला में, एक ही
एरिया में 3 बच्चे क्लासमेट हैं, एक मुस्लिम, एक क्रिश्चियन, एक हिंदू, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। उसका सामाजिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति समान है, हर हाल समान है। एक दिन वो टीचर स्कूल में बोलते हैं, आप में से कौन क्रिश्चियन मुस्लिम कौन है? वो ये दोनों बच्चे हाथ उठाते हैं। आप लोग को तो सरकार ने जो स्कॉलरशिप दिया है और साथ साथ कुछ यूनिफॉर्म कपड़ा और ये पुस्तक जो अलग सामग्री भी दे रहा है, आप एप्लीकेशन दे दो और ले लो। और ये हिंदू बच्चा खड़ा होकर पूछते हैं, सर मुझे भी चाहिए, बिकॉज मेरा परिस्थिति भी ऐसा है, मेरा पिताजी का आर्थिक अवस्था भी ऐसा ही है। वो टीचर बोलते हैं, नहीं आप तो हिंदू है ना, आपको तो नहीं मिलेगा। लेकिन ये बच्चा सोचता है, यार मैं क्या पाप किया है इस देश में जो हिंदू जन्म हो गए। अगर मेरा साथ में मेरा पड़ोसी, मेरा क्लासमेट, हमारा जो आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति ये की है, उसको तो सरकार से स्कॉलरशिप देती है और मुझे तो नहीं मिलते हैं। और ये ऐसे सोच समझ के जो बोलते हैं 10-15 दिन, कुछ दिन के बाद ये सोचते हैं, यार हिंदू धर्म में क्या रखे हैं, फालतू मुझे स्कॉलरशिप भी नहीं मिलता है इस देश में जो हिंदुओं के जो जन्म होने के बाद। तो मैं भी क्रिश्चियन बन जाता हूँ, मुझे चर्च जाते हैं, ना तो मुसलमान बन जाता हूँ, मस्जिद जाते हैं, सो बन जाते हैं मुसलमान और क्रिश्चियन। और नेक्स्ट दिन, अगला दिन वो जाते हैं स्कूल में, जाके वो उठ के बोलते हैं जो टीचर को, सर मैं अभी क्रिश्चियन या मुस्लिम बन गया, मुझे भी स्कॉलरशिप चाहिए। और वो टीचर ना, ठीक, बहुत अच्छा किया है, आपको भी एलिजिबल है स्कॉलरशिप। तो इसका क्या अर्थ है? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन ए क्रिश्चियन मिशनरी एंड ए इस्लामिक दावती एंड द इंडियन स्टेट? आप जो सहाय करते हैं, आर्थिक परिस्थिति से सहाय करो। इफ somebody requires, irrespective of religion, उसको हेल्प करो। Whether it is a Muslim or Christian, irrespective of religion, you help. Why are you bringing religion into the eligibility criteria? So is this secularism? What kind of secularism is this? Then उस समय एक स्टेटमेंट भी आया था, मुसलमान बच्चों के एक हाथ में कुरान, दूसरा हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। क्यों हिंदू बच्चा को एक हाथ में भगवत गीता, दूसरा हाथ में कंप्यूटर नहीं होना चाहिए? केवल मुसलमान को क्यों? These are the schemes, few of the schemes, बहुत है और भी बहुत है, and none of them is for Hindus. अब दिख रहे जितना स्कीम है, एक भी स्कीम हिंदुओं के लिए नहीं है। यह है हमारा धर्मनिरपेक्षता। देन ये जो एक तथ्य वेबसाइट है जो सुरेश चौहान का, उसका जो सुदर्शन टीवी पे वो चलाया था उस समय, मुस्लिम कैंडिडेट्स आर बीइंग गिवन 7 to 13 points marks more in the UPSC interview since 2016. This is documented. I have given the website details, and there is a case also in Supreme Court on this. Now UPSC में हम सब लोग UPSC में आया था, आधा मार्क से इधर उधर हो जाता है, just half a mark, whether it is do or die. Whereas on an average a Muslim candidate is getting 7 to 13 marks more. ये कौन सा ये? And this has been confirmed informally also, because many of my batchmates and contemporaries, IAS, IPS officers, they are invited as board members. उसको पूछा था मैं, ऐसा है, वो हंसा है. None of them have confirmed. But then that smile itself indicates. And OBC
Muslims and Christians in OBCs. Backwardness is based on the caste. No, caste is in किस धर्म में कास्ट है, किस समाज में कास्ट है? हिंदू धर्म में है। आप लोग जो सब लोग तो हिंदू धर्म को इतना गाली गुलोज देते हैं, आप तो पूरा जातिवाद फैलाते हो, जातिवाद है, ये जाति वो जाति है। ये मुस्लिम और क्रिश्चियन धर्म में वो बोलते हैं हम तो सब समान को, हमारा जो धर्म में, हमारा समाज में कोई विवक्षा नहीं है। सो देन जब वो लोग बोलते हैं उसका धर्म में विवक्षा नहीं है, जाति विवक्षा नहीं है, आप मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को कैसा ओबीसी बना सकते हो? ये बैकडोर रिलीजियस रिजर्वेशन है। इस वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा जो ओबीसी, हिंदू ओबीसी भाई बहनों का, उसके लिए जितना जो प्रावधान किया है जो आरक्षण में, वो नहीं मिल रहा है उसको। वैसे भी जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का जो प्रावधान है वो भी नहीं मिल रहा है, बिकॉज दीज आर बीइंग ईटन अवे बाय क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स व्हेन दे से दैट नो देयर रिलीजियंस डू नॉट हैव कास्ट। हाउ इज इट दैट द गवर्नमेंट इज मेकिंग Muslims, some sections of Muslims as OBCs? Now this Pasmanda business, all this Pasmanda business is actually bringing religious reservation through the back door, which resulted in partition of India. अभी हुआ था 70 years ago, 75 years ago। हम बोल रहा है जो अभी क्या चला रहे हैं, व्हाट इज दैट अभी? अमृत महोत्सव। कौन सा अमृत है? ये कालकोट विषय है, जो कालकोट विषय है इसको, विष। एंड नाउ वी आर सेलिब्रेटिंग इट एज अमृत एंड गिविंग देम पसमंदा एंड ऑल दोज रिजर्वेशंस। Is it not a fraud on the so-called secular constitution, on Hindu society? Why our OBC Hindu भाई बहन, why our scheduled caste भाई बहन, scheduled tribe भाई बहन Hindu, why are they not protesting? Because it is they who are affected, not the upper caste Hindus. Then इसका तो ये same thing I think we have already discussed. It is also fraud on, because what they have done when this criticism was happening that minority means only the Christian and Muslim, वो जैन और बुद्ध और सिख को भी ऐड कर दिया। इसमें दो चीज है, एक तो हिंदू समाज को तोड़ने के लिए, दूसरा है टू जस्टिफाई दैट दो माइनॉरिटी डजंट मीन ओनली मुस्लिम एंड क्रिश्चियन। We have also included Parsis, we have also included Jains, we have also included both or Sikh. It's a fraud on Article 25. The eminent advocates, they know that Article 25 Clause 2 में जो explanation है, उसका definition है, Hindu means and includes Hindus, Jains, Buddhists and Sikhs. And what are we doing? We are funding our own destruction. No, this is Ambedkar. Ambedkar has vehemently criticized minority appeasement. अपना जो पुस्तक में जो भी लिखा है, उपाध्याय सर ने अपना जो you also referred in your note, आपका नोट में भी वो भी रिफर किया है. Why are we not talking about this? उस समय जो कांग्रेस था, वो जो कांग्रेस का जो नाम लिया है, अभी सभी पार्टी है उसमें, कांग्रेस, आरएसएस, बीजेपी, सब लोग, सब पार्टी है. वी हैव नॉट लर्न्ड एनी लेसन्स. वेयर अंबेडकर के लिए इतना बड़ा बड़ा स्टैच्यू तो करते हैं, वो जो बोला है वो तो उसको तो कोई अमल करने के लिए नहीं है, खाली स्टैच्यू तो बनाते हैं. मेरा यो सबका रिक्वेस्ट है, ये पुस्तक आप अवश्य पढ़िए. जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो प्रोसीडिंग जो दामोदर स्वरूप सेठ का वो पढ़िए, और ये भी अवश्य पढ़िए. I know, I saw sir. And then the last point, I'll try to do this one. Do Hindus have equal educational rights?
Now this is Article 29. It only says protection of interests of minorities. Any section of citizens residing this one, उसका जो language है, script, culture, etc. उसके लिए only the rights of minorities are protected. What is the effect? This picture gives you complete detail. सेकुलरिज्म नाम पे पूरा जो जितना बर्डन है इस देश को धर्म निरपेक्ष रखने के लिए वो हिंदुओं का ऊपर है. एक साइड में सरकार नीचे उसका छाया में बैठे हैं और दूसरा साइड में माइनॉरिटीज वो मजा कर रहा है. किंतु सब बर्डन इज ऑन हिंदूज to say that no, we are secular, we have to be secular, we have to promote secular, we have to protect secularism, all that. Now, दामोदर स्वरूप सेठ ने बहुत अच्छा बोला था. जब आप एक साइड में बोलते हैं ये संविधान सेकुलर है, then why are you talking about the minorities? इसका ऊपर में भी दे दो दामोदर स्वरूप सेठ का जो there is a beautiful law this one. See, the secularism by definition does not allow division of religions into minority and majority. Because state has nothing to do with religion. वो minority हो majority उसको क्या आपको क्या लेने देना है? This is what he said. And I fully concur, and in fact that is what is secularism is all about. And whereas the consequences, as we have seen in the name of secularism, what goes is actually anti-Hinduism. हिंदू विरोधवादी और ये है. इट इज नॉट धर्म निरपेक्षता है, इट इज हिंदू विरोधवादी है, एंटी हिंदुइज्म इन द नेम ऑफ सेक्युलरिज्म. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. आर्टिकल 29. देन आर्टिकल 28 clause 1 says no religious instruction shall be provided in any educational institution. वो पढ़ने में तो बहुत अच्छा है, परंतु इनफॉर्मली they have declared every literature produced by Hindu civilization in the last thousands of years as religious education. And they have banished all Hindu texts. Now you go to Europe, they teach you Iliad, they teach you their Greek literature, they take pride. Even though it has religious connotations, because they say this is our Sanskriti, ये हमारा history है, ये हमारा culture है, this shows where we have come from. But you come to the India, Rigved is the world's oldest known text so far. इससे प्राचीन ग्रंथ अभी तक तो मिला नहीं है, हम उसको बैनिश कर दिया. महाभारत इज द लॉन्गेस्ट बुक एवर रिटन, लॉन्गेस्ट पोएम, 1,00,000 श्लोक है उसमें, हम उसको बैनिश कर दिया. नीति शास्त्र जो मोरल्स बताते हैं बच्चे लोग को, पंचतंत्र जो मोरल्स बताते हैं, अर्थशास्त्र जो व्यवस्था कैसा होना है, ये सबको इनफॉर्मली, देयर इज नो ऑर्डर, इनफॉर्मली दे कैटेगराइज्ड एज रिलीजियस टेक्स्ट्स and banished from instruction or from public education system. ये शेक्सपियर का जो नाटक यहाँ पढ़ाते हैं, बट कालिदास इतना जो महान, जो महाकवि हम बोलते हैं, महाकवि कालिदास, उसका तो कोई हमको पढ़ाते नहीं है. क्यों? सो दैट इज द इफेक्ट ऑफ दिस वन. इसका जो पिक्चर मैंने जो दिया है ये तिरुवल्लवार है, तिरुवल्लवार बोलते हैं. तिरुवल्लवार जो तिरु मीन्स श्री इन तमिल, इसका नाम है वल्लू, वार मीन्स जी, सो उसको तीनों शब्द को मिला के तिरुवल्लवार बोलते हैं. ही वॉज ए शैवाइट, एक महान जो महर्षि थे, उसका जो ग्रंथ में केवल जो हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता, हिंदू मोरल्स, हिंदू एथिक्स ये सब लिखा है, जैसा नीति शास्त्र है. अभी पिछले 70 इयर्स में ये लोग क्या किया है, पहले उसका जो तिलक निकाल दिया, उसके बाद में उसको जो रुद्राक्ष निकाल दिया,
उसका बाद इसे जो जनों थे वो भी निकाल दिया, अभी पूरा वो क्रिश्चियनाइज कर दिया है. This is what is de-Hinduization. The same thing what has happened in this picture is also happening to Hindus Samaj. We are only namamatra Hindu hai. Hindus in name only, HINO, he knows. Thanks to Article 28, which says that no religious education shall be imparted, and that has been completely removed. And the question which I have been asking for several years, okay, India is a secular country, no problem, we have accepted. But who is the trustee of this civilization? ये सभ्यता हजारों साल से आ रहा है, ये संस्कृति हजारों साल से आ रहा है, ये धर्म हजारों साल से आ रहा है, इसका ट्रस्टी कौन है? ट्रस्टी तो एक राज तो महाराज तो होना है, वो राजवाड़ा तो चला गया है, अभी तो जो सरकारी तो ट्रस्टी होना चाहिए. नाउ यू आर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द ट्रस्टी. द अमेरिकन सिविलाइजेशन, they say that the United States government administration is the trustee. Now, but our government says that we are secular, we are not trustee. We don't allow you to teach any Hindu religious text, nor your language. Our bhasha bhi to khatam ho raha hai. So, can a religion, can a civilization survive without the trusteeship of the government? This is a fundamental question Hindus have to ask. Is there anyone to protect us? Because political right or political might, politics is very important for survival of any civilization or any religion or any in the whole universe or in this whole world. There is not even one Hindu country, even though we are number 3 in न्यूमेरिकली एज अ रिलीजियन. नेपाल था 10-15 साल तक, वो भी अभी तो सेकुलर हो गया है. हाउ डज हिंदुइज्म सर्वाइव? वेयर डू वी गो इफ समथिंग हैपेंस? तो कश्मीर से लोग भागे इधर आ गए, कुछ लोग यहां से कहां भागेंगे? नाउ राइट ऑफ माइनॉरिटीज, आर्टिकल 30. These minorities, इसमें बोलते हैं जो minorities alone have the right to establish and administer educational institutions of their choice. Though it says minorities both religious and linguistic, but linguistic is not very prominent. So it is the religious minorities that is important for us. Now, what is the effect of that? The government of India in 2004, they enacted a law called National Commission for Minority Educational Institutions, and based on that they created a commission. That is why जो पहले जो मैं लिस्ट दिया था minority institutions का, उस लिस्ट में ये नहीं दिया था, because अभी इसमें चर्चा करें. ये जो 2004 तक ये क्या हो रहा है, कुछ राज्य सरकारों ने, कुछ ऑफिसरों ने उसको बोल रहे ठीक है आप तो माइनॉरिटी है, बट आप तो कुछ तो बेसिक रूल्स रेगुलेशन तो होना चाहिए आपका जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. ये क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम थे अपोज. आप कौन है बोलने के? जब संविधान हमको मूल अधिकार देते हैं आर्टिकल 30 के अनुसार, आप ऐसा नहीं बोल सकते. देन दे डिमांडेड विद यूपीए, एंड यूपीए गवर्नमेंट सरकार में आते ही जो ये कानून बनाया, इसका अनुसार the first duty of this commission is to protect educational rights of minorities. That means अगर वो संस्था किया है, बनाया है, अगर राज्य सरकार में उसे कुछ दिक्कत होगा, then तुरंत ये इंटरफेयर करेगा, then they will protect it. Similarly, they have a right to directly approach the courts on behalf of the minority institutions. ऐसा नहीं है जिसका राइट जो इफेक्ट है वो नहीं जाएगा, बट सरकार बोला है बिकॉज वो जाएगा तो वो पैसा खर्च करना पड़ता है. इसके लिए सरकार का पैसा से ये नेशनल कमीशन जाएगा, एक एडवोकेट लगा के वो फलाना जो
माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का जो इसका जो फंडामेंटल राइट ऐसा हुआ है, दे विल गो टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट एट गवर्नमेंट एक्सपेंस. द एडवोकेट्स फी विल बी पेड बाय द गवर्नमेंट, not by the private person. And now the question is, we are 80% as per the 2011 census. Is there any public institution that has been created to protect Hindu educational rights? No. On the contrary, they create all the problems. Now this is the combined effect. आप लोग ये भी पूछ सकते हैं, सर आप तो बोल रहे हैं जो हिंदुओं का तो एजुकेशनल राइट नहीं है, फिर भी बहुत एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तो गलगोटिया से लेके देन वो कितना जो इंस्टीट्यूशंस है, ऑल दैट दे आर ऑल हिंदू इंस्टीट्यूशंस. यस, दे आर ऑल हिंदू इंस्टीट्यूशंस अगेन इन द हिनो, दैट इज हिंदू इन नेम ओनली. This educational right is a civil right that Hindus have, whereas minorities have fundamental right. There is a distinction. The civil right is being exercised by the Hindus. This civil right is subject to interference by the state. State बोलते हैं आपका तो स्टूडेंट टीचर रेशियो इतना होना चाहिए, आपका तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, फैसिलिटीज ये होना चाहिए, आपका जो टीचर का सैलरी इतना देना चाहिए, एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका सिलेबस मस्ट कंफर्म टू द बोर्ड सिलेबस. Now what has happened, a Hindu starts educational institutions, it becomes secular. And there also once he receives any state aid, then he cannot discriminate in appointment of teachers. In a minority educational institutions, only Christians and Muslims they will appoint. Whereas जो Hindu educational institution में आप मुसलमान क्रिश्चियन को भी लेना पड़ता है, because जो सरकार कुछ aid देते हैं. So it is only in name. You can neither teach your Hindu religion, nor can you make all the posts including teacher exclusively for Hindus, nor can you follow Hinduism there. Hindu educational institutions are secular, minority educational institutions are religious. The consequence में क्या हुआ? Rahul Ishwar, there is one person in Kerala, he told me once that sir, we conducted a study. By the time a Christian or a Hindu, 18 साल उसका जो वयस जो होता है 18 years age, that boy or a girl will have received 1000 hours of formal education about their religion. 1000 hours average. That means a Christian or a Muslim knows completely what are the basic tenets of their religion. अपना अपना धर्म का बारे में वो क्या क्या है, उसका मूल क्या है, उसका जो पता है. Whereas हिंदू 18 साल छोड़ो 80 साल आने के बाद भी उसका तो 1 घंटा भी उसका तो फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिलता है. इसी वजह से हिंदू बच्चा अपना धर्म के बारे में उसका ज्ञान पूरा शून्य है. As a result, what will happen to, suppose you show before a illiterate fellow, निरक्षर को सामने आप 10 पुस्तक रखिए, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक गीता, दूसरा रखिए, उसको पूछे ये क्या है, तो बोलेगा सब पुस्तक है, सब समान तो लगता है. वैसा ही हिंदू मूर्ख हो गया बिकॉज उसका तो धर्म के बारे में पता नहीं है, वो बोलते हैं सब धर्म समान है, ऑल रिलीजन्स आर सेम, बिकॉज इसको तो कुछ पता भी नहीं है कि हिंदू धर्म क्या है, तो इस्लाम क्या है, क्रिश्चियनिटी क्या है. वेयर एज ए क्रिश्चियन एंड मुस्लिम, वो अपना धर्म के बारे में जानकारी है उसको, सो वो कभी नहीं बोलते हैं सब धर्म समान है. ये केवल बेवकूफ हिंदू बोलते हैं सब धर्म समान है, बिकॉज ये उसका गलती नहीं है, ये हमारा गलती है. क्यों? उसका तो हम जो धार्मिक ज्ञान नहीं दिया है, वो धार्मिक अज्ञान है, उसी वजह से सब लोग ये बोलते हैं. देन लास्ट में वी बिकम व्हाट वी रीड. हम जो पुस्तक पढ़ते हैं, जो ज्ञान लेते हैं, सपोज जो आप
स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहिए, यू रीड दैट नॉलेज, अब स्पेस साइंटिस्ट बनेगा। इकोनॉमिस्ट बनना चाहिए तो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, इंग्लिश प्रोफेसर बनना है तो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे, हिंदी बोलना तो हिंदी, संस्कृत जो हमारा जो मिश्रा जी है जो प्रोफेसर, वो संस्कृत पढ़ा है, वो प्रोफेसर बन गया। दैट मीन्स वी बिकम व्हाट वी ईट। लाइकवाइज इफ यू रीड कम्युनिज्म, वी बिकम कम्युनिस्ट्स। बट अगर आप चिकन खाएगा तो चिकन नहीं बनेगा, आप मटन खाएगा तो जो बकरी नहीं, बकरा और बकरी नहीं बनेगा, आप राइस खाएगा तो वो पैडी तो नहीं बनेगा। सो देयरफॉर हिंदू पेरेंट्स आर मोर इंटरेस्टेड, हिंदू पेरेंट्स, मेरा जो अनुरोध है उसका पेट में क्या जा रहा है आप तो बहुत देखभाल करते हो, बट उसका मस्तिष्क में क्या जा रहा है कोई बॉदर नहीं करते। इसी वजह से ऑल हिंदू चिल्ड्रन आर बिकमिंग इधर एंटी हिंदू और हिंदूज इन नेम ओनली। आप उसका मस्तिष्क में क्या जा रहा है उसका ऊपर भी थोड़ा ध्यान देने का आवश्यकता है। इज द सेम थिंग, कंटिन्यूएशन ऑफ व्हाटएवर। और ये दो केस है वेरी इंटरेस्टिंग। जो रामकृष्ण मिशन ने जो कलकत्ता हाईकोर्ट में एक पिटीशन डाला है दैट जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो विवक्षा हो रहा है, सो हमको भी, हम हिंदू नहीं है, हमको माइनॉरिटी डिक्लेयर करो। सो हम कलकत्ता हाईकोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया वो रामकृष्ण मठ हिंदू नहीं है। Luckily, somebody came to the Supreme Court and Supreme Court said struck it down. No, what is it happening? Likewise, जो कर्नाटक में जो लिंगायत है, जो शैवइट है, वो लोग बोलते हैं हम भी हिंदू नहीं है, बिकॉज हमारा जो बसवा है जो वो हिंदू नहीं है, सो हमको भी डिक्लेयर करो सो दैट ना हमारा एजुकेशन सिस्टम चलाएंगे। इसका मतलब ये है दैट जो माइनॉरिटी जो बेनिफिट मिलने के लिए जो हिंदू समाज में जितना जितना जो भाग है वो फ्रैगमेंटेशन हो रहा है। वी आर द कॉन्स्टिट्यूशन, द आर्टिकल 30 इज इंसेंटिवाइजिंग फ्रैगमेंटेशन ऑफ हिंदू सोसाइटी इंस्टेड ऑफ यूनाइटिंग हिंदू सोसाइटी। दैट इज द इफेक्ट ऑफ दैट। नया है। इंटरेस्टिंगली सैयद शहाबुद्दीन वॉज द वन, वो राम जन्मभूमि का बहुत अपोज किया था। उसका जो एक मैगजीन चलते थे मुस्लिम इंडिया, एंड देन वैसा जो हिंदू विरोधी पर्सन को, उसको भी लगा यार क्या ये हिंदू समाज को क्या हो रहा है, माने इतना दुर्दशा तो मुसलमान देश में भी नहीं है हिंदुओं का दुर्दशा, किंतु यहाँ जो धर्मनिरपेक्ष जो देश है इसमें ये है। देन वो 1996 में 1995 वो एक बिल इंट्रोड्यूस किया है पार्लियामेंट में, जो आर्टिकल जो संविधान में जो आर्टिकल जो 30 में जो अल्पसंख्यक जो शब्द है ना, जो उसको माइनॉरिटीज, उसको हटा के सभी को वो मूल अधिकार देने के लिए ये बिल वो है। इसका मतलब ये है जो हिंदुओं का दुर्दशा का ऊपर मुसलमान को जितना दया है, हिंदू जो रूलर्स को वो नहीं है। हम जो हिंदुत्व जो बोल रहा है उसको भी ये नहीं है। एंड दैट बिल रिमेन, ऑफ कोर्स इट लैप्स्ड, बट इट रिमेन, इट शोस एपैथी ऑफ हिंदू लीडरशिप about their own problems. And United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People 2007 में ये है that the indigenous religions, cultures, languages, traditions, customs, that means जो लोकल जो यहाँ का जो धर्म, संस्कृति, भाषा, सभ्यता, ये सब के लिए उसको रक्षा करने के लिए जो अपना अपना जो देशों में जो कानून बनाना चाहिए,
उसका जो इंडिया इज ए साइनेटरी टू दिस पर्टिकुलर डिक्लेरेशन एंड आर्टिकल 253 का अनुसार, जो हमारा संविधान का जो आर्टिकल अनुसार, जब भी इंडिया एक यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन को साइन करते हैं, उसको तुरंत लागू करने के लिए एक कानून बनाना चाहिए और संविधान में संशोधन लाना चाहिए। ये 2007 में तो भारत साइन किया है, अभी तक तो 16 साल हो गया, उसके लिए कुछ नहीं किया है। और इंडिजिनस पीपल कौन है? हम ही तो इंडिजिनस है, हमारा धर्म इंडिजिनस है, हमारा भाषा यहाँ का है, हमारा संस्कृति यहाँ का है। सो हमको प्रोटेक्ट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस बोलते हैं, परंतु हमारा देश, हमारा सरकार, हमारा जो धर्मनिरपेक्ष सरकार, धर्मनिरपेक्ष संविधान, इसके बारे में बात भी नहीं करते हैं। इसका उल्टा उसको नाश करने के लिए, नष्ट करने के लिए जो ये चल रहा है। और लास्ट में, देयरफॉर वी डिमांड इक्वल राइट्स फॉर हिंदूज। हम ये विशेष अधिकार नहीं मांगते हैं। जो मुसलमान क्रिश्चियन को जो अधिकार दिया गया है, मूल अधिकार जो संविधान में दिया गया, हमको उतना ही दीजिए। इसका जो उदाहरण, मुसलमान और क्रिश्चियन को सोफा में बिठाया है, हम उसको, हमको नीचे बिठाया है। हम नहीं चाहते उसको नीचे लाओ, हमको भी एक सोफा दे दो, उसका बगल में बैठते हैं। ये है इक्वल राइट्स का उद्देश्य है। हम किसी का विरुद्ध में नहीं है, किसी का विरोधी नहीं है, सब शांति रहे। बिकॉज हम बोलते हैं ना, जो सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, सब शांति में रहिए। हमको समान अधिकार चाहिए संविधान का अनुसार। उसके लिए क्या होना चाहिए? आर्टिकल 12, 15, 25 से लेके 30 तक इसको संशोधन करना चाहिए। और जो आर्टिकल 12A, 12B, सर ये आर्टिकल 12A, 12B इज बेसिकली फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, harmonious interpretation of the provisions and residual rights. US Constitution, the Second Amendment clearly says that the fundamental rights enumerated in the US Constitution are only certain of the rights enjoyed by the people which are enumerated. Rest of the rights remain with the people. So therefore the Supreme Court of the US is enjoined to protect those rights which are not mentioned in the Constitution. So, and then likewise we want a Temple Act. जैसा जो वक्फ एक्ट जो केंद्र सरकार ने जो बनाया, जैसा जो सिख गुरुद्वारा एक्ट ने बनाया, वैसा ही जो टेम्पल एक्ट एक बनाना चाहिए, जो टेम्पल कानून होना चाहिए उसका। और राज्य सरकारों में जितना जो मंदिर का बारे में जो कानून बनाया, उसको सबको रद्द करना चाहिए, रिपील करके एक केंद्र सरकार ये बना के जो मंदिरों को सरकार से मुक्त कराना है, सरकार को नियंत्रण से मुक्त कराना है। और उसका जो प्रावधान ऐसा करना चाहिए जो हिंदू समाज में सभी जो भक्त है, जाति इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, सभी भक्तों को जो उस मंदिर में, जो मंदिर का जो नियंत्रण में, उसका जो मैनेजमेंट में, उसका जो व्हाट इज दैट, they should get the provision to take part in the management of that institution. उसके साथ में जो पुजारी और पुरोहित और जो धर्माचार्य जिस संप्रदाय का है वो लोग और ये भक्तों का जो रिप्रेजेंटेटिव ये मिला के एक कमेटी बनाना चाहिए। वो कमेटी चलाएंगे मंदिर को, जो संप्रदाय का अनुसार, उस जो प्रत्येक जो संप्रदाय है उस संप्रदाय का अनुसार वो मंदिर चलाना चाहिए। उसमें सरकार का कोई लेन देन नहीं होना चाहिए। ये हम चाहते हैं, ये दोनों अगर ये जब होगा, ऑटोमेटिकली इंडिया विल बी ए परफेक्ट सेक्युलर स्टेट। वी आर नॉट आस्किंग इंडिया टू बिकम, दिस इज व्हाट इज हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र में तो दूसरा कुछ नहीं है। दिस इज व्हाट, बिकॉज इफ यू आर ट्रीटेड प्रॉपरली, इक्वली अलॉन्ग विद अदर्स, वो हिंदू राष्ट्र है। बिकॉज राजधर्म तो वही है, राज तो सब अपना जो प्रजा को तो समान देखना चाहिए, समान देखभाल करना चाहिए। परंतु क्या करना है इसके लिए, सम ऑफ दीज आइडियाज, बट देन किम कर्तव्यम,
उसमें तो दो है दैट वी हैव टू री हिंदुआइज हिंदू सोसाइटी। अपना बच्चा क्या पढ़ रहा है, उसका मस्तिष्क में क्या जा रहा है, उसके लिए जो इनफॉर्मल भी कुछ हम हमारा जो धर्म का बारे में ज्ञान कैसा दे सकता है ये सोचना चाहिए। और हमारा जो परिवार में हमारा जो ये जितना जो समाज में जो है उसको कम से कम सप्ताह में एक बार मंदिर जाए, उसके लिए प्रयास करें। और जो मंदिर है जो सरकार का जो नियंत्रण में है उसके लिए भी कुछ हम जो भक्त समाज या कुछ नाम डेल के उसका जो सरकार का नियंत्रण में रहने से भी हम जाके इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। एक बार हम इंटरेस्ट लेंगे तो वो जो जितना जो हानि हो रहा है वो थोड़ा कम हो सकता है। एंड एज फार एज पॉसिबल डोंट सेंड योर चिल्ड्रन टू क्रिश्चियन और मुस्लिम स्कूल्स। आई हैव नॉट, मैंने कभी मेरा बच्चा को दोनों बेटा बेटी को कभी कोई क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल कभी नहीं भेजा था। और एक जगह में ऐसा था जब मैं एसपी था, देयर वाज द ओनली गुड स्कूल वाज ए क्रिश्चियन स्कूल। हमने और मैं और मेरा जो धर्मपत्नी हमने लिया है। जो हिंदुओं जो चलाते हैं वो थोड़ा स्टैंडर्ड कम होने से भी हम घर में उसको ये बोधन करेंगे, उसको जो टीचिंग करेंगे हम उसी स्कूल को भेजा था। एंड ऐसा नहीं है मेरा बच्चा अभी उसको भगवान का आशीर्वाद से वो ठीक है। दे हैव रीच्ड द बेस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन। So it is not that Christian schools or Muslim schools only give good education, Hindu schools also give. हम ये ऐसा हुआ था जिस स्कूल में हमने जो हिंदू स्कूल हमारा बच्चा गया था उस स्कूल में मेरा बेटी वो बोर्ड को टॉप किया था, उस वजह से उसका स्कूल का नाम भी बढ़ गया। देन नेक्स्ट ईयर मोर हिंदूज हैव स्टार्टेड सेंडिंग देयर चिल्ड्रन। वो पूछा जा रहा है एसपी साहब तो अपने जो बेटी को तो वहाँ भेज रहा है, अभी तो स्कूल तो अच्छा होगा। That means we are promoting our own schools. We should promote our schools. Then, ये last में politics and religion are two different things. We should stop seeing Hindu interest through the political prism. बहुत लोग मुझे तो व्हाट्सएप में इतना आते हैं, अगर आप सच हिंदू हो तो आरएसएस बीजेपी और मोदी साहब को तो मोदी जी को समर्थन करो, उन्हें उसका जो अर्थ आता है। हम बोलते हैं कि आप कौन है, मैं सच हिंदू या सच नहीं, और इसका जो मेरा समर्थन मोदी जी का देना बीजेपी को देना इसका क्या संपर्क है। आप हिंदुओं का, अगर हिंदू कोई कांग्रेस में है, बीजेपी में है, सपा में है, तृणमूल कांग्रेस में भी है, तेलुगुदेशम पार्टी में, वो हिंदू ही रहेगा। अगर जो मुस्लिम और क्रिश्चियन कांग्रेस में है, बीजेपी में है, इस जो भी पार्टी में तो मुस्लिम ही रहेगा। आप क्यों जो हिंदू धर्म को जो राजनीतिक दृष्टि से क्यों देख रहे हो? हिंदुओं का सबसे बड़ा हानि ये हो रहा है। हम ये सोचना की आवश्यकता समय आया है दैट जो भी हो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, अगर अपना धर्म को, हमारा हिंदू भाई बहनों को अगर वो कुछ ये ठीक कर रहा है, उसको सहाय कर रहा है, हम उसको समर्थन करें इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी। वी ओनली सी हु इज बेनिफिटिंग अस। दैट इज व्हाट मुस्लिम्स डू, दैट इज व्हाट क्रिश्चियंस डू। दैट इज व्हाई व्हेनेवर एनी पार्टी कम्स टू पावर इंक्लूडिंग बीजेपी, दे विल ओनली हेल्प क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स बिकॉज they view their interest first. They see politics through the prism of Christianity and Islam, whereas we see Hinduism through the politics of RSS, BJP or other political prism. इसी वजह से बहुत हानि हो रहा है। So keep talking about equal rights for Hindus. आप जिसका मौका मिले, आप ट्रेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, कहाँ होटल में है, जहाँ भी हो, बोलते रहो हम भारत में हिंदुओं को समान अधिकार हमारा संविधान नहीं दिया है, हमारा मंदिर को मुक्त करना चाहिए, बोलते रहो। जितना भी बोलते रहे उतना अच्छा है, बिकॉज सब हिंदू जानना चाहिए इस विषय पर, बिकॉज ये हमारा जो अस्तित्व का बारे में है। हम रहेंगे कि नहीं, इसका अस्तित्व है। बिकॉज अभी जिस परिस्थिति हो रहा है, 20 साल के बाद भारत में हिंदू प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे।
बाद। यस 20 साल के बाद ये सोचना चाहिए। अगर ये अगर जानकारी हम नहीं लेंगे, अगर इसका अनुसार अगर काम नहीं करेंगे हिंदू धर्म को, हिंदू समाज को बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए, और भगवान श्री कृष्ण भी हमको बचा नहीं सकते। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। आपने तो बहुत लॉट ऑफ पेशेंस, यू हर्ड मी, थैंक यू वेरी मच। अगर कुछ प्रश्न वगैरह है तो आई थिंक इट इज ऑलरेडी 2:20, लंच के बाद में हम करेंगे। सर इसके बाद आपका सेशन फिर होगा क्या? या होगा। अच्छा सर, थोड़ा सा अपने बारे में हम लोगों को शॉर्ट में बताइए, मैं थोड़ा देर से। मेरा नाम नागेश्वर राव है। मैं रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हूँ। मैं अभी तेलंगाना हूँ, पहले आंध्र प्रदेश था, अभी हैदराबाद में रहता हूँ। मैं सीबीआई का डायरेक्टर कुछ दिन था, सो रिटायर्ड डायरेक्टर सीबीआई, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हूँ। और पिछले कब से 2018 से हम ओपनली ये विषय पे बात कर रहा है, कॉन्फ्रेंस कर रहा है। दिल्ली में 2 बार कॉन्फ्रेंस हुआ है, हैदराबाद में अभी जो अगस्त में किया था, 4 दिन पहले विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में यही कॉन्फ्रेंस किया था, इससे पहले कोलकाता में एक कॉन्फ्रेंस किया था, कटक उड़ीसा में कॉन्फ्रेंस किया था, मुंबई में भी हुआ है। सो हम जितना हमारा जो लिमिटेड जो रिसोर्सेज है उसका जो जाके इस विषय पे हम लोग को बोल रहा है। और मैं जो ऑडियंस स्ट्रेंथ देख के मैं नई बात करता हूँ, बिकॉज अगर इतना जो ऑडियंस में अगर एक को भी समझ में आया, मैं धन्य हो गया। बिकॉज वो एक 10 को बता देंगे, दिस इज व्हाट इट गोज। सो देयरफॉर थैंक यू वेरी मच। अगर कुछ और दूसरा प्रश्न है तो आफ्टर लंच वी विल डिस्कस। संस्कार मंच में 2 साल से इसे विषय पे चला रहा हूँ, इसलिए मैंने मोबाइल खरीदा इसी किसी को चलाने के लिए। बहुत धन्यवाद। अब अभी भोजन के बाद फिर हम रेज्यूम करेंगे। सर हम लोग आपका मिशन बहुत तेज चलाएंगे। आपका जितनी कॉन्फ्रेंस हुई है उसके 1000 बहुत धन्यवाद। आपसे बात करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि हम लोग यस